Hello students, as in our last two videos we have done series. That's one of the data structure of pandas. Now today from this video, this is the third part of data handling using pandas, and we will learn a new data structure of pandas, that is data frame. Now data frames. What is data frame? It's one of the data structure of pandas. In previous videos we have learned that series are not able to handle the data in the form of 2D. Means series were the one dimensional, handling the data of one dimension only. Here data frames of pandas can store 2D heterogeneous data. Here the data types of your data can be in different data types, and it can contain the data in rows as well as in columns. Mean two-dimensional data can be handled here. Got it? Like our tables, they are having rows as well as columns. Like in MySQL, we used to create the tables. Rows were there, columns were there. That we can do in data frames. Fine. Now basic structures of the data frames. Here columns can be of different data types. The size of data frame is mutable. The main thing. The size of series was immutable. We cannot change the size of the series. We cannot add any element in the series. But here in the data structure, it is mutable. It can be modified. Got it? Elements of data frames, they are also mutable, means they can also be modified. We can label axes of rows and columns. We can name, each row can be named, like index name होते हैं ना. And the columns of data frames, they can also be named. Arithmetical operations can be done. I think maximum of features are same as series. Got it? Indexes may constitute number and string also. In the series also we have learnt that we, instead of numbered index, we can change the index to strings also. Here data frames can be created using list, series, dictionary and numpy array. We will learn one by one. First of all, here creation of data frames and how to display them. In the series, what we have to do, there was a variable, then pd.series was there. Fine. सबसे पहले हम empty data frame बना रहे हैं यहाँ पर. तो the concept, the command for that is, let's see here. Practically I have also displayed here. First of all, panda is imported here. Fine. Then after that, a variable we have taken, that is d1. d1 is equal to pd. pd is the short form of pandas. We have given here pd. That pd dot data frame. For data frame D and F both must be in capital letters. सबसे important चीज, सीरीज में S capital रखते थे, यहाँ पर data frames में D and F, that must be capital, and round braces, start and end. This is how we can create an empty data frame. Press enter. After that, how to see the data frame? The method is print, and within the braces your variable in which you have created the data frame. In D1 we have created, that's why D1 is written here. And as you press the enter, the details, like this is an empty data frame, columns blank, index blank, because nothing is there, that's why they are blank. Got it? And if we want to see the type of this, type से क्या पता चलता था हमें कि what is this? Either it's a dictionary, it's a series, it's an array, what's it? Type D1 अगर हम करते हैं, within the braces the variable will be written, then it is showing that it's a data frame. Okay, this is how we can create a basic data frame, or you can say an empty data frame, and how we can see that. We can also see after as only D1 we will type, then also it can be displayed. Okay, but a standard method to display is with print, and within the round braces the variable will be there. Okay, next is creating a data frame from list. From a given list, or if we have a list, then from that how we can create.
First of all, here we have created a list, means a variable we have taken. list1 is my variable, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं. And हम सब जानते हैं that list are created within the square brackets. अगर ये कर्सिव करली ब्रैकेट्स होते तो इट मीन्स डिक्शनरी वी आर क्रिएटिंग, और स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो इट मीन्स लिस्ट वी आर क्रिएटिंग. पता होना चाहिए. क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड करली ब्रेसेस किस लिए यूज होते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स किस लिए यूज होते हैं. ओके, फॉर लिस्ट square brackets are used. Here list1 is my variable in which this list I have stored. Got it? फिर मैंने एक वेरिएबल लिया d1 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम. अभी पीछे हमने मेथड पढ़ा. एंड विद इन द राउंड ब्रेसेस आई हैव आर्गुमेंट एज एन आर्गुमेंट. जो भी हम ब्रेसेस में देते हैं दैट इज कॉल्ड एन आर्गुमेंट. हमने यहाँ लिस्ट का वेरिएबल जिसमें हमारी लिस्ट स्टोर्ड है दैट वी हैव पुट. नाउ इट्स अ डाटा फ्रेम विच इज नॉट एम्प्टी. इजी है ना, बिल्कुल. देन डिस्प्ले किया अपना डाटा फ्रेम. हेयर यू कैन सी दिस इज द कॉलम, these are the indexes of your elements, and this is column number 1 and this is the name of your column number 1. by default these indexes are given. अगर एक और कॉलम होता तो 0 1 2 3 ऊपर भी ऐसे ही होता. they will be assumed as column name and these are the index of rows. got it? now next is from here what we have done. d1 is variable, again pd dot data frame, same list is there. अब मैं क्या कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ डिफॉल्ट इंडेक्स अपनी मर्जी के इंडेक्स दे रहे हैं. ओके, देन हाउ वी कैन list1 जो वेरिएबल है उसके बाद कॉमा लगा के एट्रीब्यूट लिखना है हमने. इंडेक्स इज इक्वल टू लिस्ट की तरह ही बिल्कुल इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स एनी इंडेक्स इन स्ट्रिंग, अपना नाम, फ्रेंड का नाम, एनी अदर नंबर, वट एवर वी वॉन्ट. सिर्फ डिफरेंस क्या है, स्ट्रिंग को कोट्स में रखना है और नंबर्स को विदाउट कोट्स लिखना है. दैट वी कैन मेंशन. जितने एलिमेंट्स लिस्ट में हैं उतने ही इंडेक्स होने चाहिए, अदरवाइज इट विल शो एन एरर. अगर यहाँ पर 5 आप इंडेक्स दे देंगे तो इट विल शो एरर बिकॉज एनिवेलेंट्स आर ओनली 4. ओके, जैसे यू विल रन दिस कमांड, what it is showing, instead of these by default index it is showing the index which we have given here. got it? this is how we can apply index on a data frame. clear? अब देखिए यहाँ पर what we have done here. d2 एक वेरिएबल लिया मैंने, d2 डाटा फ्रेम बनाया, उस डाटा फ्रेम में ही लिस्ट डाल दी है. यहाँ पर मैंने अलग से लिस्ट ली थी, मीन्स एक अलग से स्टेप बनाया मैंने, लिस्ट बनाई, फिर उस लिस्ट वेरिएबल को अंदर डाटा फ्रेम में एज एन आर्ग्यूमेंट दिया. बट हेयर डायरेक्टली द लिस्ट इज गिवन विद इन द एज एन आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली. बिल्कुल द सेम डाटा फ्रेम दे बन गया है बिल्कुल विद दिस इंडेक्स 1 विद 1 कॉलम एंड कॉलम इंडेक्स इज 0. हेयर यहाँ पर न्यूमेरिक्स एंट्री के साथ, न्यूमेरिक एलिमेंट्स के साथ डाटा फ्रेम बना. अब स्ट्रिंग के साथ देखते हैं. हम बार बार कहते हैं ना डाटा फ्रेम कैन हैंडल डिफरेंट डाटा टाइप्स. अब वो देखें भी तो सही वाकई में हैंडल कर रहा है कि नहीं. अ लिस्ट वी आई हैव क्रिएटेड विद सेवरल लिस्ट. एक लिस्ट के अंदर सब लिस्ट हैं अलग अलग. यू कैन सी हेयर लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती हैं. इस एक लिस्ट में मेरे पास 3 लिस्ट मैंने बनाई है सेपरेटेड विद कॉमा. वेरिएबल इज list2. डाटा फ्रेम बनाया, देन list2, and this is the method how we can rename the columns also. index को rename करना सिखा दिया यहाँ पर. and this is how जो ऊपर वाला इंडेक्स था, जो कॉलम इंडेक्सेस थे, that we can also change. कैसे? जैसे इंडेक्स चेंज किया ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ पर कॉमा लगाकर इसके साथ ही कॉलम्स में अलग अलग करके आपको दिखा रही हूँ, सो दैट द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू. कॉलम्स इज इक्वल टू जितने कॉलम आपके इसमें हैं दैट मच नेम यू कैन mention here and that will be displayed. You can see that these are the index numbers of rows and these are for columns. Here I have changed for columns also. और अगर मैं यहीं पर कॉमा लगा के index is equal to 3 separate index ABC दे देती तो here it would have been ABC. I think it's clear to everyone. Now we will learn to create a data frame from series. अब series से कैसे बनाते हैं? Okay, when we represent 2 or more series in the form of rows and columns, it becomes a data frame. Obviously, in series only one dimensional data is there, and अगर 2 series मिला देंगे, obviously that will become a 2 dimensional.
2 सीरीज, 3 सीरीज, एज मच वी वांट. लुक हियर, आई हैव टेकन अ वेरिएबल S1. सीरीज बनानी हमने पिछली वीडियो में सीखी थी, लास्ट टू लास्ट वीडियो, पार्ट 1 ऑफ डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास. इन दैट वी हैव लर्न हियर द सेम मेथड. मैंने सीरीज बनाई यूजिंग अ, व्हाट इज दिस, अभी हमने बात करी थी कर्ली ब्रेसेस से वी यूज टू क्रिएट डिक्शनरी. डिक्शनरी में कीज एंड वैल्यूज, जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड की, और उसके बाद इस टू के साइन के बाद जो चीज़ होती है दैट इज द वैल्यू. बेटा छोटी छोटी चीज़ें जो बीच में बता रही हूँ ना, दैट मस्ट बी नोटेड. एग्जाम में पूछ लेते हैं इन बिटवीन दीज टू विच वन इज की एंड विच वन इज वैल्यू. जो पहले है दैट इज की, जो बाद में है दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट की. ओके, वापस अपनी कॉन्सेप्ट पे आते हैं. एक वेरिएबल है S1. हेयर pd.series, इट्स अ मेथड टू क्रिएट अ सीरीज. विद इन द राउंड ब्रेसेस a dictionary we have created. Okay, इस dictionary and each element is separated with comma, and each element have a key and its value. You can see I have mentioned here 4 keys and their values. Okay, in the same way S2 and another series is created. 2 सीरीज बन गई. इज इट क्लियर? अब मैंने डाटा फ्रेम बनाया. D1 इज वेरिएबल pd.data frame. Within the round braces again a dictionary I have mentioned. अब यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है? marks. This marks will be displayed as the column name. इस सीरीज का जो S1 सीरीज मेरी है, for that the marks will be the column name, and for S2 series the age will be the column name. जैसे ही मेंशन करके मैं इसको प्रिंट करती हूँ, look here, जो भी मेरी कीज थी they are now the index numbers of your data frame. Means data frame में automatically the indexes are created and we can display the column names very easily using the series in data frames. I think it's the more easier method, but एक condition क्या है कि that index must be same for both the series. अगर एक और सीरीज ले रहे हो, सपोज ये मार्क्स लिया, ये एज लिया, अब थर्ड कॉलम में अटेंडेंस ले लूँ, सपोज S3 एक और सीरीज ले लूँ, इन दैट अगेन द इंडेक्स मस्ट बी सेम. अब ये इंडेक्सेस है ना, तो यू कैन सी इन बोथ द सीरीज ऑल आर सेम. दिस वॉज द रीजन. ओके, इंडेक्स सेम नहीं होंगे तो दिस विल नॉट बी डिस्प्लेड. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज sorting data in data frames. Sorting, I think we all know the meaning of sorting. Means arranging our data. Data frames हमने बनाने सीख लिए. In data frames में how we can arrange the values in ascending or in descending order. Fine, that we will learn now. Here we can sort the data in the data frame using this method, sort underscore values. This is the function to be used. In this function 2 arguments are passed. ठीक है, 2 आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं. अभी देखते हैं हम क्या क्या पास करेंगे. आउट ऑफ विच फर्स्ट इज सॉर्टिंग द फील्ड एंड द ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग. मीन्स पहला जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज सॉर्टिंग द फील्ड एंड अदर इज in which method we are sorting, either in ascending order or in descending order. अगर हम second argument पास नहीं कर रहे हैं, this one the order of sorting, then by default your data will be sorted in ascending order. अगर हम आपके फंक्शन को नहीं बताते हैं कि मुझे डाटा असेंडिंग में चाहिए कि डिसेंडिंग में चाहिए, तो वो अपने आप क्या दिमाग लगाता है कि डाटा विल बी सॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर. गॉट इट? अब वो पिछले वाला एग्जाम्पल लिया है मैंने, देखो S1 सीरीज है, S2 सीरीज है, यूजिंग बोथ द सीरीज वन डाटा फ्रेम वी हैव क्रिएटेड. ठीक है, ये सेम एग्जाम्पल है, कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है. अब आते हैं नेक्स्ट पे. इस सेम को मैंने क्या किया, प्रिंट किया है, जो जिसमें मेरा डाटा फ्रेम है दैट वेरिएबल D1. नाउ फंक्शन वी हैव टोल्ड हियर, दिस इज द फंक्शन sort underscore values and within the round braces मैंने कहा था 2 arguments will be there. This is one of the argument. By keyword will be used with equal to sign and within the square brackets the name of the column. Column का नाम है यहाँ पर marks. The name of the column will be given according to which you want to sort your data frame. Got it? यहाँ पर जिस कॉलम का नाम देंगे according to that your
values will be sorted. Means we have given only one argument instead of two. अभी मैंने बताया था कि 2 आर्ग्यूमेंट देते हैं लेकिन एक ही दिया. दूसरा किस लिए था कि ऑर्डर बताने के लिए कि असेंडिंग करना कि डिसेंडिंग, बट मैं नहीं बता रही हूँ. इट मीन्स बाय डिफॉल्ट ही अपने आप क्या समझेगा कि डाटा विल बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. तो आप देखें मार्क्स कॉलम इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. हो गया ना असेंडिंग में. आप देखिए सेम चीज मैं यहाँ पर बता रही हूँ. दिस इज द माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट. सेम चीज सेम कमांड आई हैव रिटन हियर, एंड along with this the second argument is given here, that is ascending. कीवर्ड लिखा ascending इक्वल टू ट्रू और false, दोनों में से कोई एक चीज. false मीन्स ascending नहीं चाहिए, तो it will do the sorting in descending order. And if ascending equal to true, it means it will be done in ascending order. Okay, ascending false means the data will be arranged in descending order. क्लियर है बेटा? आई थिंक असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बोथ आर क्लियर. चलिए नेक्स्ट इज नाउ वी विल लर्न टू क्रिएट डाटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी, या फिर यू कैन नेम इट एज डिक्शनरी ऑफ सीरीज. इट्स मोर इंटरेस्टिंग. लेट्स लर्न इट. लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज कैन बी पास एज एन इनपुट डाटा to create a data frame. Mean a list, a vast list of dictionaries we will create here. And the dictionary keys by default they are taken as column name. अभी पीछे भी हमने देखा था कि डिक्शनरी की जो की थी जब डाटा फ्रेम बनाया तो दैट की इज यूज्ड एज कॉलम नेम. द सेम थिंग आई एम डिक्शनरी के साथ अगर आप डाटा फ्रेम बना रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट दे आर टेकन एज कॉलम नेम. नाउ लुक एट द प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन हियर. Here I have taken a variable dic, okay, and I have created, you can see curly braces here. It means it is a dictionary, and in the dictionary a key is there, and along with that key its values are given here. So you can see this is the first key of our dictionary, and with this to sign is to के next क्या होती है हमारी values, and for the values we have used a list. You can see for this name key this list of students is the value of this name. अभी हमने क्या पढ़ा कि in the creation of data frame the dictionary keys are used as the column names automatically. It means मेरे data frame का first column मैंने name बना रही हूँ जिसमें ये सारे बच्चों के नाम आएंगे. This will be my first column of data frame. Then separated with comma, next key and its values, then next key match its values, then next key and its values. Okay, complete dictionary we have created. फिर मैं अपनी डिक्शनरी को प्रिंट किया. ओके, ये डिक्शनरी मेरी बन गई रेडी. नाउ वी आर क्रिएटिंग डाटा फ्रेम यूजिंग दिस डिक्शनरी. D1 इज माय वेरिएबल, देन PD dot data frame and within the round braces dic variable I have used. Dic, what was dic? Dic was my dictionary which I have created. And if we see this data frame along with the column names already mentioned here, a complete data frame. Isn't it looking nice? So this is how we can create a data frame using the dictionaries. Okay. Then next is creating a data frame by list of dictionaries. मतलब वही चीज़ें कहीं पर डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, कहीं लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज यूज़ कर रहे हैं. मीन्स वहाँ तो क्या था डिक्शनरी ऑफ लिस्ट मीन्स मेन डिक्शनरी था उसके अंदर लिस्ट थी. अब यहाँ मेन लिस्ट है उसके अंदर डिक्शनरीज है. ओके, नाउ हेयर वी आर क्रिएटिंग अ लिस्ट. यू कैन सी स्क्वायर ब्रैकेट्स आर देयर. विद इन द लिस्ट separate dictionaries were there. You can see this is first dictionary, then second dictionary, third dictionary. Curly braces हैं. In the dictionary keys are there and values are there. Getting? Keys are there and values are there. कहीं कहीं पर मैंने सेम कीज भी यूज करी हैं, कहीं पर अलग भी. लाइक C1 यहाँ भी है, यहाँ भी है. C5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाकी नहीं है. Here C6 and C4. C4 यहाँ भी है, यहाँ भी है. ओके, फ्यू कीज आर सेम हेयर. यू कैन सी हेयर लिस्ट डिस्प्ले की. ये वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही मैंने कर दिया.
नेक्स्ट इज डाटा फ्रेम क्रिएशन. सेम उसी मेथड से डाटा फ्रेम बनाया, आर्ग्यूमेंट्स में मैंने मेरा लिस्ट वाला वेरिएबल दे दिया. देन आई एम डिस्प्लेइंग दिस D1. व्हाट वी कैन सी हियर, व्हाट इज दिस? दिस इज द डाटा फ्रेम ऑफ दीज लिस्ट. और एक चीज, सबसे मेन चीज, जो मैंने कीज दी दे आर डिस्प्लेड एज द कॉलम नेम्स. दिख रहे हैं? कॉलम नेम्स है मेरे. और जिस भी कॉलम कीज की मैंने वैल्यू नहीं दी है, लाइक हेयर C2 इज नॉट देयर, C3 इज नॉट देयर, C4 इज नॉट देयर, यहाँ पर C1 2 3 नहीं है, 5 नहीं है इस वाली डिक्शनरी में. फॉर देम नैन हमने हमारी सेकंड वीडियो में पढ़ा था, नॉट अ नंबर वैल्यू. मीन्स अभी हमें पता ही नहीं है ये वैल्यूज क्या है, लेकिन वैल्यूज हैं. ओके, मीन्स नॉट अ नंबर वैल्यू इज ऑटोमेटिकली एडेड टू द मिसिंग नंबर्स. गॉट इट? दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट. मीन्स जो भी लिस्ट डिक्शनरी के थ्रू, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के थ्रू हम डाटा फ्रेम बना रहे हैं, एंड कीज आर टेकन एज द कॉलम नेम्स, and in the dictionaries whichever the columns key means whichever the keys value we are not mentioning, for that the value will be considered as missing, means nan, not a number value. Clear? Next is selecting and accessing from data frame. हमने slicing पढ़ा था, that is something like that. वही पिछले वाला लिया मैंने एग्जाम्पल. सेम मेरा डाटा फ्रेम हो गया डिस्प्ले मेरे पास. नाउ आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट सम पार्ट ऑफ इट. कैसे देखेंगे, ध्यान देंगे. अ वेरिएबल इन विच द डाटा फ्रेम इज क्रिएटेड. मेरा D1 में मैंने डाटा फ्रेम बनाया है, D1. विद इन द ब्रेसेस यू कैन मेंशन द रो नंबर्स. मीन्स कहाँ से कहाँ तक देखना है. 0 से इंडेक्स से स्टार्ट करना है और 1 तक. 1 मीन्स -1, 0 से 0. इट मीन्स 0 इंडेक्स वाली वैल्यूज दिख रही हैं. 0 इंडेक्स ये है तो इट मीन्स फर्स्ट रो विल बी डिस्प्लेड. क्लियर? अगला देखें, 0 to 2 जो लास्ट वैल्यू होती है उसमें -1 करते हैं. मीन्स 0 and 2 - 1 इज 1. 0 इंडेक्स एंड 1 इंडेक्स, यानी कि फर्स्ट 2 रोज वी वांट टू सी हियर. क्लियर? दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस selected values from the data frame. Next is to create an indexed data frame using list. अब list का use करके indexed data frame we want to create. How? Look here, a dictionary we have created with keys and values. वही पुराना वाला example है, in the previous we have taken. Okay, this data frame we have created. Then in D1 variable, what we have done, pd dot data frame, and within the braces dic, this is my variable in which we have created the dictionary, and with comma separator index argument is given, and here as many indexes here you have given, or you can say as many lists you have given in the dictionary, as many indexes we have to mention. मैंने यहाँ 4 लिस्ट ली हैं, that's why I am mentioning here 4 indexes. Okay, so here if we display this list, sorry, this data frame, okay, it's not a list, it's a data frame. You can see मेरी जो डिक्शनरी में जो कीज थी they are named as column name, and here while creating a data frame we can specify the index names also, and I have specified, and here they are displayed. Clear? जब तक आप practically नहीं करेंगे the concept will not be clear to you at all. Now to change the index column, अब what we are doing here we are changing the index column. One of my data's column is shifted to index column. How? By default the index already we are getting in data frame 0 1 2 3 जितने भी हम बनाते हैं elements, like that the index number by default they are given. Pandas also provide us with the facility to select other column of data frame. Means मेरे data frame का ही कोई एक column I can set that as the index column. एक नई चीज़ है ना, चलो देखिए कैसे करते हैं.
दिस इज माई प्रीवियस एग्जाम्पल, वही पुराना जिसमें मैं डिक्शनरी ऑफ लिस्ट किया था हमने, द सेम एग्जाम्पल. दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड द डाटा फ्रेम. यहाँ आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे. हाउ अ कॉलम, कोई भी एक कॉलम, ये 4 कॉलम है मेरे डाटा फ्रेम में, एनी वन कॉलम आई कैन यूज एज माई इंडेक्स. कैसे? d1 डॉट set underscore index. This is the function to be used for this purpose. Set underscore index and within the braces name of your column. मैंने name दिया है. I can give English, I can give Maths, I can give IP. या आपका जो भी column है, that column name you can mention here and comma and in place is equal to true. Is equal to true. Okay? जैसे ही आप लिख के एंटर करेंगे, इन प्लेस मीन्स इन प्लेस ऑफ दैट इट विल बी परमानेंटली रिप्लेस्ड. इन प्लेस का मतलब ये है परमानेंटली. इफ इट इज ट्रू मीन्स परमानेंटली रिप्लेसमेंट विल बी डन. जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, नथिंग विल बी डिस्प्लेड. ओके, देन CD1. इफ यू प्रिंट इट और विदाउट प्रिंटिंग ऑल्सो इट इज वर्किंग, देन यू कैन सी इंडेक्स गायब हो गया, मेरा नेम कॉलम इंडेक्स की जगह शिफ्ट हो गया है. यू कैन सी हेयर. Okay, and here rest, instead of 4 columns now we have 3 columns in our data frame. Isn't it easy? Okay, but अब एक चीज दिमाग में आती है कि in place को अगर मैं false कर दूं तो क्या होगा. अभी मैंने कहा in place is equal to true, it means permanently the changes are done. Suppose मैंने यहाँ false कर दिया, then if you press enter the same display will be displayed. लेकिन अभी मैंने ट्रू लिख के एंटर किया तो मुझे कोई डिस्प्ले नहीं आया. आई हैव टू टाइप D1 अगेन फॉर गेटिंग दिस डिस्प्ले. लेकिन अगर मैं यहाँ फॉल्स करके एंटर करती हूँ तो एग्जैक्टली आफ्टर एंटरिंग यू विल गेट दिस डिस्प्ले. मीन्स इट विल शो द डिस्प्ले एग्जैक्टली आफ्टर राइटिंग द कमांड, बट दैट इज नॉट परमानेंटली. उसके बाद अगर आप D1 को प्रिंट करवाएंगे तो इट विल शो योर प्रीवियस डाटा फ्रेम. मीन्स चेंजेस आर नॉट डन परमानेंटली. क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज टू रीसेट. अभी मैंने क्या किया था, एक कॉलम को इंडेक्स बना दिया तो मेरे जितने कॉलम थे उसमें से एक कॉलम कम हो गया. ओके, अभी ये किया था, ये देखो यहाँ तक ये पिछले हमने उसमें किया. अब वापस मुझे मेरा वही सिस्टम चाहिए जैसा था, एलोकेटिंग डिफॉल्ट इंडेक्सेस. जो डिफॉल्ट इंडेक्स थे 0 1 2 3 वही चाहिए हमें. तो व्हाट वी कैन डू, सिंपल, योर डाटा फ्रेम वेरिएबल डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स. वहां पे क्या था, सेट अंडरस्कोर इंडेक्स था चेंज करने के लिए, अब रीसेट है, सिर्फ सेट की जगह रीसेट हो गया. रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स एंड विद इन द ब्रेसेस. अब कोई कॉलम नेम तो है ही नहीं ना, बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग एनी ऑफ द कॉलम, डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो दैट वन आर्ग्यूमेंट इज स्किप्ड फ्रॉम हेयर. सिर्फ आपने क्या करना है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा. देन यू हैव टू टाइप योर वेरिएबल ऑफ योर डाटा फ्रेम and then you can see that again it's done. है ना, पहले ये मेरा एक कॉलम इंडेक्स बन गया था, अब वापस वो कॉलम दोबारा से कॉलम बन गया एंड डिफॉल्ट इंडेक्सेस आर देयर. ओके, अब फिर वही क्वेश्चन आता है, इफ यू राइट इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स देन व्हाट विल हैपन. इफ यू टाइप फॉल्स एंड प्रेस एंटर, exactly after this command you will receive this output. Okay, मीन्स हमने प्रिंट नहीं किया अभी तक, लेकिन फिर उसके बाद आप अगर D1 को प्रिंट करके देखेंगे यू विल रिसीव द सेम आउटपुट. दिस वन मीन्स परमानेंट चेंजेस नहीं हुए हैं. क्लियर? फॉर गेटिंग द परमानेंटली सेटिंग इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू मस्ट बी डन. ओके, चलिए हेयर लुक, यहाँ मैंने पूरा आपको करके दिखाया हुआ है. द सेम एग्जाम्पल प्रीवियस वन, data frame with a dictionary we have created, then index we have set here, set index, name column को मैंने index बना दिया. क्लियर है? देखिए मैंने false किया था, जो मैं आपको verbally बता रही हूँ बार बार, that thing I am showing here by doing. in place is equal to false. false मैंने क्या किया, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद आपको दिखेगा, दिख रहा है, कॉलम चेंज हो गया, नेम वाला इंडेक्स बन गया. लेकिन अगर मैं वाकई में D1 को प्रिंट करवा रही हूँ तो नो चेंजेस आर हेयर, एग्जैक्टली D1 जैसा था वैसा का वैसा ही है भाई, कुछ नहीं हुआ. गॉट इट? अब देखो मैं वापस D1 डॉट सेट इंडेक्स, अब इन प्लेस को ट्रू कर दिया, कोई आउटपुट नहीं आया, प्रॉम्प्ट आ गया मेरा.
प्रॉम्प्ट पे मैंने अब D1 को मैं प्रिंट कर रही हूँ, दिख रहा है, विद चेंजेस, मीन्स ट्रू कर रहे हो तो परमानेंट चेंज है। गेटिंग? वापस रीसेट वाले में भी मैंने यही करके दिखा रही हूँ आपको। इफ इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स किया मैंने, एग्जैक्टली इस कमांड के बाद मुझे डिस्प्ले सही दिखाता है, लेकिन वाकई मैं D1 को प्रिंट कर रही हूँ तो नो चेंजेस आर देयर। तो इट मीन्स इफ वी वांट टू सी द चेंजेस परमानेंटली, देन इन प्लेस मस्ट बी written as true. Now rename columns name in data frame, means if we want to change the column name, then what to do? Pandas provide us with the facility, or you can say the flexibility, to even change or rename the column inside. आप मतलब हम क्या देख रहे हैं, डाटा फ्रेम में हर चीज़ हमारे हाथ में है। We can change the row name, we can change the column name, we can add, we can delete, we can interchange, everything is possible. चलिए देखते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मैंने। A1 अ लिस्ट वी हैव क्रिएटेड, वेरिएबल इज A1, लिस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। यूजिंग दिस लिस्ट वी हैव क्रिएटेड अ डाटा फ्रेम हेयर। फिर मैंने डाटा फ्रेम को प्रिंट करवाया, सिंपल सा डाटा फ्रेम दिख रहा है मेरा कॉलम नेम था 0, दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 यही आते हैं, तो मैंने कोई कॉलम नेम यहाँ दिया ही नहीं था, दैट्स वाई 0 इज देयर। अब कैसे दें, D1 जिसमें मेरा डाटा फ्रेम बना हुआ है, डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू जितने कॉलम है कॉमा से सेपरेट करके उतने नेम्स वी कैन मेंशन हेयर। राइट नाउ आई एम हैविंग ओनली 1 कॉलम, दैट्स वाई ओनली 1 नेम इज देयर गिवन, गॉट इट, एंड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स इट्स डन। देन यू कैन सी प्रिंट D1, इट इज डिस्प्लेड हेयर। अगर ऐसे, ये तो जब है जब मैं डाटा फ्रेम बना लिया उसके बाद चेंज कर रहे हैं, याद आया हो, कॉलम नेम तो चेंज ही नहीं किया। अगर आप बनाने डाटा फ्रेम डिक्लेयर करने से पहले ही इफ यू वांट टू चेंज, देन विद दिस A1 पुट कॉमा हेयर एंड कॉलम्स इज इक्वल टू, अभी पीछे भी कर दिखाया था हमने, कॉलम इज इक्वल टू विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स, द सेम थिंग वी कैन रिटर्न हेयर and it will be done in that way also. Okay, next is adding columns to a data frame, means मेरे data frame में suppose here, वही पुराना example लिया मैंने, D1 सिंगल कॉलम का एक डाटा फ्रेम बनाया, कॉलम को नाम दिया मैंने एज, अभी किया हमने जस्ट, ओके। उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, we are adding more columns to our data frame D1. How we can do? Look here, D1 within the square brackets new column name, जो भी नाम आप चाहें। मेरा पहले का एज था कॉलम का नाम, मैं अब इसमें एज 1 नया कॉलम बना रही हूँ, एंड इक्वल टू 45, मैंने एक ही एलिमेंट दिया है ना, लेकिन आई हैव टू गिव द 5 एलिमेंट्स, तो इट विल ऑटोमेटिकली टेक ऑल द 5 इक्वल टू 45। हमने स्केलर वैल्यू कांस्टेंट वैल्यूज पढ़ी थी कि अगर एक ही देते हैं तो सबको वो सेम ही समझ लेता है। तो यू कैन सी अब D1 को अगर डिस्प्ले कर रहे हैं तो एज पहले से बना हुआ कॉलम है, एज 1 हमने इस मेथड से बनाया है, एंड यू कैन सी ऑल आर 45, न्यू कॉलम इज एडेड। अगर मैं इस 45 के साथ लिस्ट में 46 47 और वट एवर 5 और वैल्यू दे देती तो ये सारे डिफरेंट आते। लाइक लुक हेयर, अगेन आई एम डूइंग हेयर D1 न्यू कॉलम नेम, यहाँ एज 1 दिया था, यहाँ मैंने एज 2 कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स मीन्स न्यू कॉलम नेम जो भी आप देना चाहें इक्वल टू द वैल्यूज फॉर दैट कॉलम। 5 रोज हैं तो यू हैव टू गिव 5 वैल्यूज, आप एक ही वैल्यू देंगे तो पांचों के लिए वो सेम वैल्यू कंसिडर करेगा। लाइक हियर यू कैन सी एज 2 ऐड हो गई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक थर्ड कॉलम एज 3 बनाया, एक और कॉलम, उसमें क्या डाल रही हूँ, सीरीज के थ्रू डाल रही हूँ। लुक अ न्यू मेथड, PD डॉट सीरीज, इस एज 3 की वैल्यूज मैं यहाँ से डाल रही हूँ। कोई भी 5 इंडेक्स होने चाहिए, है ना, कोई भी 5 एलिमेंट्स, क्योंकि 5 रोज है मेरे पास, है ना। तो PD डॉट सीरीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स एनी 5 वैल्यूज, एंड हेयर अलॉन्ग विद द वैल्यूज आई एम मेंशनिंग देयर इंडेक्सेस ऑल्सो। अगर आप नहीं भी ये देंगे तब भी ये सीरीज चलेगी, एंड यू कैन सी एज 3 इज हेयर। क्लियर? आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, डू द प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, इट्स मस्ट, सिर्फ देखने से कुछ नहीं आता है। And now arithmetic operations on data frames means, arithmetic means plus minus divide, anything can be done here। सीरीज में भी हमने किया था,
लुक, वही मेरा पिछले वाला एग्जांपल है, ये एक डाटा फ्रेम मेरा बना हुआ है जिसमें मैंने कॉलम्स ऐड किए हैं, एज 1 एज 2 एज 3 कॉलम्स ऐड किए हैं। अब लुक हियर, मुझे सिर्फ एज 3 कॉलम देखना है। देखने का भी मेथड बहुत इजी है। योर वेरिएबल ऑफ डाटा फ्रेम विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स द नेम ऑफ योर कॉलम, एज 3 लिखो, सिर्फ आपको वो कॉलम दिखाएगा। इजंट इट इजी? नेक्स्ट इज लुक हियर, अ न्यू कॉलम, एज 3 तक बने हुए हैं, चलो एज 4 और बनाते हैं। बनाने का मेथड हमने सीख लिया है, डाटा फ्रेम एंड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स एज 4 अ न्यू कॉलम नेम वी हैव गिवन। अब एज 4 में आई वांट कि एज 2 और एज 3 दोनों का टोटल हो जाए, तो सिंपल मेथड D1 विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉलम नेम प्लस नेक्स्ट कौन से डाटा फ्रेम का कौन सा कॉलम लेना है, मीन्स आपने यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन से डाटा फ्रेम का कौन सा कॉलम लेना है। ओके, बोथ थिंग्स वी हैव डिफाइंड एंड यू कैन सी न्यू कॉलम नेम एज 4 और व्हाट इट इज, दोनों का टोटल दिख रहा है। या फिर यहाँ देखो मैंने क्या किया, दिस इज हाउ वी कैन कॉपी द वैल्यूज ऑफ वन कॉलम टू अनदर, मीन्स और भी अच्छी चीज़ है। इस डाटा फ्रेम का ये वाला कॉलम, नया कॉलम बना रहे हैं हम, मैंने नाम दिया टोटल ऑफ एज 2 + 3, अपनी मर्जी का कोई भी नाम, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन अप्लाई हेयर, इक्वल टू D1 एज 4। आई वॉन्ट कि एज 4 में जो भी वैल्यूज हैं वो इस नए कॉलम में कॉपी हो जाएं, मीन्स असाइनमेंट, पता है ना, असाइनमेंट वेरिएबल इक्वल टू इज असाइनमेंट वेरिएबल, वी आर असाइनिंग द वैल्यूज ऑफ एज 4 टू this new column, and you can see here a new column is created and the values of same to same as age 4 are assigned to this column also. I think it's clear. चलिए नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग अ कॉलम फ्रॉम अ डाटा फ्रेम। अब डाटा फ्रेम से एक कॉलम, वैसे हम पढ़ चुके हैं ये चीज़, अगेन देयर आर 3 मेथड्स। सपोज ये मेरा वही वाला डाटा फ्रेम है जो अभी पीछे हम बनाया, उस दिस इज माई सेम डाटा फ्रेम जो हम पीछे से काम कर रहे हैं वही सेम है। हम लुक हियर, एक डाटा फ्रेम के एक कॉलम को कैसे देखना है, ये दिस मेथड ऑलरेडी वी हैव लर्नड। डाटा फ्रेम का वेरिएबल और कौन सा कॉलम देखना है, मीन्स कौन से डाटा फ्रेम का कौन सा कॉलम देखना है, सिंपल, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स द नेम ऑफ द कॉलम, एज 4 डाला तो एज 4 डिस्प्ले हो गया, सिंपल इजीएस्ट मेथड। इससे भी इजी मेथड, इस डाटा फ्रेम का ये वाला कॉलम, मीन्स यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किया है, यहाँ पर आप डॉट यूज करेंगे, डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड, मीन्स D1 द वेरिएबल इन विच द डाटा फ्रेम इज क्रिएटेड एंड देन द नेम ऑफ योर कॉलम of your data frame, but the difference is here within the quotes the name of your data column is there and here without quotes. Okay, third method, now third method is ILOC। हमने पढ़ा था सीरीज में भी, I means index, LOC means location, it's a function of pandas। here the name of data frame मीन्स जिस वेरिएबल में बनाया है, डॉट ILOC इज अ फंक्शन एंड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था नम्पी में, सीरीज में, ऑल दैट मीन्स हमें कॉलम चाहिए तो रोज वाली चीज़, रोज तो हमें सारी ही चाहिए, तो इस टू का सिंबल, जब इस टू से पहले भी और बाद में भी कुछ नहीं होता मीन्स स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारी रोज हम डिस्प्ले कर रहे हैं। देन कॉमा, कॉमा के बाद आते हैं कॉलम के पार्ट्स। कॉलम को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बता रहे हैं 0,3 मीन्स 0 कॉलम देखना है और मुझे थर्ड वाला जिसका भी इंडेक्स है 0 है और 3 है, ओके, सिर्फ वो कॉलम दिखाएगा। तो यू कैन सी हेयर 2 कॉलम्स, 0 इंडेक्स वाला कॉलम और 3 इंडेक्स वाला कॉलम, 0 1 2 3, दिस इज द थर्ड इंडेक्स। तो यू कैन सी हेयर, क्लियर है। कॉमा से पहले रोज का डिस्क्रिप्शन है, कॉमा के बाद कॉलम्स का डिस्क्रिप्शन है। रोज की फिलहाल हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कॉलम्स की बात कर रहे हैं, तो रोज तो हमें सारी देखनी है, तो इस टू का मतलब है स्टार्टिंग टिल एंड रोज, ऑल द रोज आर डिस्प्लेड। और कॉमा के बाद जो हम बताएंगे, लुक अब मैंने सेम एग्जांपल लिया है, सिर्फ कॉमा की जगह इस टू का साइन लगा दिया। कॉमा का मतलब था कि 0 इंडेक्स वाला देखना है और थर्ड इंडेक्स वाला देखना है, बट इस टू का मतलब क्या है, 0 इंडेक्स से लेकर 3-1 तक देखना है। 3-1 का मतलब 2, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टिल दिस -1, दिस -1, तो 0 1 2 3 कॉलम दिखाएगा, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स,
Clear? These are the three various methods to see a particular column of a data frame. Now how to delete a column from a data frame. अब हमने ऐड करना सीख लिया, नए बनाने सीख लिए, अरिथमेटिक ऑपरेशंस वी हैव लर्न. नाउ वी विल लर्न हाउ टू डिलीट अ कॉलम फ्रॉम अ डाटा फ्रेम. वही फिर मैंने पुराना ही डाटा फ्रेम लिया है D1 अपना. बहुत इजी मेथड है ऐड करने का. जो मेथड था like that, del, a new word we will add, del. Here again 3 methods are there. मैं तीनों मेथड एक एक करके आपको बता रही हूँ. फर्स्ट मेथड इज del, then keyword is del, variable of your data frame, and within the square brackets the name of your column. जो भी name आप डालेंगे that column will be deleted. Clear? And after that if we'll see this data frame, you can see age for column is not here. It means that is deleted. Means first method was using the del keyword, del space your variable, then within the square brackets the column name. Okay. Second method is pop. Pop हमने numpy में किया था. चलिए दोबारा करते हैं. Pop is one of the method to delete. सिर्फ del और pop में difference क्या है? del आपको कोई आंसर नहीं देता. मीन्स जब आप एंटर प्रेस किया मैंने यहाँ पर लुक कुछ नहीं आया, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आ गया. ठीक है, कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं मिलती है. पॉप में जो डिलीट करेंगे दैट वैल्यू विल बी रिटर्न टू यू. लुक हियर क्या है डाटा फ्रेम का स्ट्रक्चर, सॉरी वेरिएबल, डाटा फ्रेम वेरिएबल डॉट पॉप, POP is a function, and within the braces the name of the कॉलम विच यू वॉन्ट टू डिलीट. मैं इस कॉलम को डिलीट करना है. जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे जो इसने डिलीट किया दैट वैल्यू इज रिटर्न्ड टू यू. बाकी किसी भी चीज़ में आपको वैल्यू, मतलब वो बता रहा है कि भाई ये डिलीट कर दिया मैंने. फिर मैं वापस D1 को देख रही हूँ तो यू कैन सी एज कॉलम इज नॉट देयर. समझ आए? पॉप की स्पेशलिटी है, पॉप रिटर्न्स व्हाट इट इज डिलीटिंग. थर्ड मेथड इज ड्रॉप मेथड. ओके, ड्रॉप कहाँ पर था? ड्रॉप माई सीक्वल में हम टेबल डिलीट करने के लिए ड्रॉप यूज कर रहे हैं ना. तो सिमिलर थिंग्स समथिंग. तो हेयर हाउ इट इज यूज्ड, योर डाटा फ्रेम वेरिएबल डॉट ड्रॉप, then within the braces is2 what it is the column name, which column you want to delete, the name of that column, then comma axis is equal to 1. कौन से axis पे? by default axis 0 is the rows. here we are deleting columns, तो column की axis 1 होगी obviously. 0 पे rows और 1 पे column, तो axis will be written as 1 here. and जैसे ही आप enter press करेंगे it will display the left out data frame. जो भी बचा है, क्या बचा है? you can see here age2 is not there now. clear? that's it for now. listen one thing, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे nothing will come to us. we have to do if we want to learn. all the best, carry on.